مظلوم مسلمان ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں آ رہا ہے، آپ سے التجا ہے کہ رو کر جتنا مانگ سکتے ہیں فلسطین کے لیے، عالم اسلام کے لیے اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے کہ دعا کیجیے اللہ جنگ بند کرا دے۔ معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، مہیلائیں عورتیں جو ہے بیوہ ہو رہی ہیں، ان کی دعائیں کیجیے آپ۔ کیا گیا کہ ہر ٹور کے اندر ایک عالم کو انشاءاللہ الرضا ٹور روانہ کرے گا انشاءاللہ، تاکہ جانے والوں کا عمرے کے ارکان کی ادائیگی صحیح ہو۔ الحمدللہ اس ٹور کے اندر بھی 3 علماء کرام کو طے کیا گیا اور 3 علماء کرام اس ٹور کے اندر جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ الرضا ٹور یہ طے کر چکا ہے کہ ہر ٹور کے اندر کم از کم ایک عالم یا حافظ ان کے ساتھ روانہ کیا جائے گا۔ تو پہلا مقصد یہ ہے کہ حاجی کے ساتھ علماء حفاظ ہو، دوسرا مقصد یہ ہے کہ حاجی حرم سے نزدیک ہو، تیسرا مقصد یہ ہے کہ ٹور میں جانے والا بڑی منتوں کے ساتھ جاتا ہے۔ ایک دیہات کا رہنے والا اس کی تمنا ہوتی ہے کہ حرم کی کھجور کی گٹلی بھی وہ مقدس سمجھتا ہے، تو اس لیے لانے والا وہاں سے ہر چیز لانا چاہتا ہے۔ عام طور پر ہمارے بھی سفر ہوئے ہیں عمرے میں، تو ہم نے دیکھا ہے 25 کلو 30 کلو لگیج ملتا ہے، لیکن جب سعودی ایئر لائن سے جب ٹکٹ بک کیا جاتا ہے تو حاجی وہاں سے آتے وقت بڑا خوش ہوتا ہے کہ بھائی لگیج کی بڑی سہولت ہوئی، آسانی کے ساتھ پہنچایا گیا۔ اس لیے آنے اور جانے کی ٹکٹ کی جہاں تک الرضا ٹور اینڈ ٹریول کی بات ہے، وہ سعودی ایئر لائن سے ٹکٹ بک کرنے کا خواہش مند ہے۔ اس لیے الرضا ٹور اینڈ ٹریول یہ اپنا ٹارگٹ کر رہا ہے کہ جاتے وقت حاجیوں کو جتنا ہو سکے سہولت کے ساتھ لے جایا جائے اور سہولت کے ساتھ لایا جائے، اور زیادہ تعداد ہمارے پاس نہیں ہے، ابھی ہم نے 41 حاجیوں کو منتخب کیا۔ ہم الرضا ٹور اینڈ ٹریول پورے شہریان سے اور پورے ضلع کے لوگوں سے خواہش مند رکھتے ہیں کہ حاجی سہولت کے ساتھ جائیں اور سہولت کے ساتھ آئیں۔ وہاں کھانا پینا سارے انتظامات تو دیکھنے کے بعد حاجی خود آ کر بیان کرے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم اس لیے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا نہیں بلکہ جتنی عبادت ان کے ناطے سے کی جا سکتی ہے، ان کے تعلق سے کی جا سکتی ہے، وہاں جا کر کرنا چاہیے۔ یہ جا رہے ہیں اللہ کی دعوت پر جا رہے ہیں، اس لیے یہ بہت خوش نصیب ہے۔ اس کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے، تمام مسلمانان عالم کے لیے اور خاص طور سے غزہ کے مسلمانوں کے لیے گڑا کر دعائیں کریں جتنی کر سکتے ہیں۔ وہاں پر دیکھیے بوسہ لینا سنت ہے اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ آپ سنت کے ایک عمل کو کرنے کے لیے مسلمانوں کو، عورتوں کو ڈھکیل کر کے اور بوسہ لیں گے، آپ ایک حرام عمل کر کے سنت کو کریں گے۔ وہاں پر حج جو الرضا ٹور سے روانہ ہو رہے کہ پورے اورنگ آباد کے لیے، پورے مہاراشٹر کے لیے، پورے دنیا کے لیے اور خاص طور سے فلسطین کے لیے سب کعبے کو پکڑ کر دعا کرے۔ جو ہے تو مکہ کی پوری زیارتیں کریں گے، اس میں زورانہ سے بھی عمرہ ہے، الحمدللہ طائف سے بھی عمرہ کریں گے، مکہ کی پوری زیارتیں کریں گے انشاءاللہ۔ جو حاجی لوگ جا رہے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کی وہاں کے بادشاہ کی بھی نہیں، اللہ کی، اسی لیے ضیوف الرحمان کو کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر بادشاہ سب گزرے ہیں، لیکن کسی کو بھی حج کی، عمرے کی، زیارت حرمین کی توفیق نہیں ملی اتنا سارا مال رکھ کر، اور یہ جا رہے ہیں اللہ کی دعوت پر جا رہے ہیں، اس لیے یہ بہت خوش نصیب ہے۔ اس کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے، تمام مسلمانان عالم کے لیے اور خاص طور سے غزہ کے مسلمانوں کے لیے گڑا کر دعائیں کریں جتنی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی طرف سے پیغام اس کے ذریعے سے یہ پیغام ان کو یہ ہے کہ یہ لوگ جو جا رہے ہیں وہ اپنا ایک ایک لمحہ قیمتی سے قیمتی گزاریں، اس میں ان کو جو توفیق مل رہی ہے اللہ کی طرف سے وہ زندگی میں پھر ملے نہ ملے۔ ایسا بھی ہوتا ہے ان کے جو رشتہ دار ہیں جدہ میں رہتے ہیں، مکہ میں رہتے ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں چلو ہمارے پاس 1-2 دن رہ لو، ہمارے پاس 1-2 دن رہ لو۔ یہ اگر جا کر رہنا تو یہ دنیا بہت ساری پڑی ہوئی ہے، لیکن حرمین کی جو چیزیں ہیں وہ کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ حرم کے اندر مکہ مکرمہ میں 1 نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے، مدینہ میں 1 نیکی ایک روایت کے مطابق 50,000 کے برابر ہے۔ یہ ایک قرآن اگر وہ پڑھ لیں گے مکے میں رہتے ہوئے تو 1 لاکھ قرآن کا ثواب ملے گا۔ زندگی بھر 1 لاکھ قرآن نہیں پڑھ سکتے، مدینہ منورہ میں 1 قرآن پڑھ لیں گے 50,000 کا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی 1 سبحان اللہ 1 لاکھ کے برابر، مدینہ 1 سبحان اللہ 1,50,000 کے برابر۔ اس لیے میری ان سے درخواست یہ پیغام یہ کہ اپنا جتنا وقت ہے وہ دعاؤں میں، اذکار میں، نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں اور تمام مسلمانوں کے لیے گڑا کے دعائیں کریں اور وقت پورا قیمتی سے قیمتی گزاریں۔ آپ کے تجربے روشنی میں کوئی ایسے ارکان، کوئی ایسا عمل جو جہاں نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ ویسا ہوتا یہ ہے کہ جیسے اب طواف کا مسئلہ آ گیا اور طواف میں جو بوسہ لیتے ہیں حجر اسود کا، وہاں پر دیکھیے بوسہ لینا سنت ہے اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ آپ سنت کے ایک عمل کو
करने के लिए मुसलमानों को, औरतों को ढकेल करके और बोसा लेंगे। आप एक हराम अमल करके सुन्नत को करेंगे, वहां पर हजरत को बोसा मत दीजिए, इस्तेलाम दूरत से कर लीजिए। दूसरी बात ये होती है कि आजकल ये किया है कि मर्दों के लिए कि जो एहराम में होते हैं वही उनको छोड़ते हैं मताफ के अंदर, और जो एहराम में नहीं होते नहीं छोड़ते क्योंकि वो उम्रा नहीं कर रहे हैं। तो जिनको सिर्फ तवाफ करना है वो भी ऐसे एहराम की शक्ल बांध लेते हैं, नियत नहीं करते हैं और चले जाते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि ये भी इससे बचे। ये भी एक धोखाधड़ी है कि एहराम सिर्फ ऐसे पहन लिया कपड़े और मताफ में चले गए, उसके बाद इजाजत आजकल नहीं दे रहे हैं। लेकिन इससे भी एहतराम करें और वक्त को ज्यादा से ज्यादा कीमती गुजारें, कि लम्हा उनका बहुत कीमती है। रात में उनकर गिड़ाएं, रात दिन एक कर दें, जितना मांग सकते मांग ले अल्लाह से। अल-रिज़ा वालों का इसमें सब पहला काफिला है, इनके बारे में कोई ख्वाहिशात, कोई पैगाम? ये काफिला है, ये जितनी खिदमत इनकी कर सकते हैं करें। इनकी जो भलाई अच्छाई है और इनकी नेकियां ये है कि ये तो खुद कर रहे हैं, लेकिन इनकी खिदमत करके इनकी दुआएं भी लेंगे, अल्लाह से इनके जो सवाब भी लेंगे। तो ये जितनी खिदमत करेंगे अल्लाह के पास भी सवाब मिलेगा और इनकी यहाँ भी नेक नामी होगी और ज्यादा ज्यादा लोग जाएंगे। मेरी यही ख्वाहिश है कि ये जाएं और कामयाब से कामयाब हो, ये खिदमत भी करें और ये जितने जाने वाले ये इनसे खुश रहें और इनके लिए दुआएं देते रहें। आपके तासुरात बोलिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अभी उम्रे के लिए जा रहे हैं। अल्लाह हमारे उम्रे को, सही को कबूल फरमावे। और अल-रिज़ा टूर से जो जा रहे हैं हम लोग माशाअल्लाह, तो अभी पहुंचने के बाद इंशाअल्लाह दुआ करेंगे आप लोगों के लिए। अल्लाह, कितने दिन का सफर है आपका? 20 दिन का सफ़र है जी माशाअल्लाह। और हालात के बारे में कुछ वही कलमात बोलेंगे आप? अल्लाह जो है तमाम मुसलमानों को राहत, चैन, सुकून, आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमावे। आप कहाँ से, आपका नाम? अक्कल कुआ से हम लोग, नंदुरबार जिला। इनके वादे क्या है आपके साथ? माशाअल्लाह रिज़ा टूर वालों ने जहाँ तक हम लोगों से अभी तो किए, अभी तो जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। ऐसा मुकम्मल हम लोगों को एतमाद है और रिज़ा टूर पर। हम सबके लिए दुआ करेंगे और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह पहली बार जा रहे हैं? हम पहली मरतबा। कहाँ से आप? मैं अनवा से हूँ, रहने वाला हूँ, तुम जानने से। खास तौर से अल-रिज़ा को चुनना, इनके जरिए जाने को खास मकसद? नहीं, बस अल्लाह ने बुला लिया। और 2 दिन पहले मेरा पासपोर्ट दिया था मुफ्ती मोहसिन साहब ने। मेरा टिकट वगैरह निकाल कर मेरा 2 दिन के अंदर कंफर्म किया। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी है मेरे। और सर जाता है अनवा सिल्लोड़ में आता है, बराबर? जी जी। अनवे से ताल्लुक सतह पर एक मतलब देहात से आपका जाना कैसा लगता है? आपके देहात से बड़ी खुशी हो रही है मुझे मालूम। क्या कहिए आज? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा अल-रिज़ा टूर का पहला सफ़र है और हमारे टूर के मकासद में सबसे पहले ये है कि रिज़ा का मतलब होता है अल्लाह को राज़ी करना। तो टूर का मकसद ही है कि लोग जब अल्लाह के घर पर जाएं तो अल्लाह को राज़ी कर कर भी आए और हमारी ज़ात से और टूर वालों की तरफ से कोई तकलीफ हाजियों को न पहुँचे। सबसे पहला मकसद टूर वालों का ये है। और बुनियादी मकासद में ये तय किया गया कि हर टूर के अंदर एक आलिम को इंशाअल्लाह अल-रिज़ा टूर रवाना करेगा इंशाअल्लाह, ताकि जाने वालों का उम्रे के अरकान की अदायगी सही हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस टूर के अंदर भी 3 उलमा इकराम को तय किया गया और 3 उलमा इकराम इस टूर के अंदर जा रहे हैं माशाअल्लाह। आमतौर पर देखने में आता है कि बैतुल्लाह में लोग जाते हैं, हमने हमारी आंखों से देखा है कि तवाफ कर रहे होते हैं, इबादत जहाँ जो चीज़ करने की होती है वहाँ नहीं कर पाते हैं। जैसे तवाफ शुरू हो जाए तो तलबिया ख़त्म हो जाता है, लेकिन लोग तलबिया पढ़ते रहते हैं। तो ये मालूमात जब तक नहीं होते तब तक उलमा साथ में नहीं होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल-रिज़ा टूर ये तय कर चुका है कि हर टूर के अंदर कम से कम एक आलिम या हाफिज इनके साथ रवाना किया जाएगा, पहला मकसद। दूसरा मकसद ये कि अल-रिज़ा टूर ने ये तय किया है कि हाजी को जितना हरम से नज़दीक छोड़ा जाएगा उसके लिए इबादत करने में उतनी आसानी होगी। आमतौर पर सस्ता लोग देखते हैं कि भाई 65 में हो जाए, 68 में हो जाए, 70 में हो जाए, लेकिन वहाँ की जो दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और आने के बाद जो शिकायतें कर दे, जबकि देखा यह जाए कि बैतुल्लाह से आने के बाद शिकायत नहीं होना चाहिए, तो उन शिकायतों को बाकी न रखा जाए। इसलिए अल-रिज़ा टूर और ट्रैवल ने यह तय किया कि भाई थोड़े पैसे कॉस्टली क्यों ना हो, लेकिन हाजी अपनी सहूलत के साथ बैतुल्लाह में हर रुकन को अदा कर सके। तो पहला मकसद ये है कि हाजी के साथ उलमा हफ़ाज़ हो, दूसरा मकसद ये है कि हाजी हरम से नज़दीक हो, तीसरा मकसद ये है कि टूर में जाने वाला बड़ी मन्नतों के साथ जाता है। एक देहात का रहने वाला, उसकी तमन्नाएं होती है कि हरम की खजूर की गुठली भी वो मुकद्दस समझता है, तो इसलिए लाने वाला वहाँ से हर चीज़ लाना चाहता है। आमतौर पर हमारे भी सफ़र हुए हैं उम्रे में, तो हमने देखा है 25 किलो 30 किलो लगेज मिलता है, लेकिन जब सऊदी एयरलाइन से जब टिकट बुक किया जाता है तो हाजी वहाँ से आते वक्त बड़ा खुश होता है कि भाई लगेज की बड़ी सहूलत हुई, आसानी के साथ पहुँचाया गया। इसलिए
आने और जाने की टिकट की, जहाँ तक रिजर्व टूर एंड ट्रैवल की बात है, वो सऊदी एयरलाइंस की टिकट बुक करने का ख्वाहिशमंद है। इसलिए लोग इस बात को ध्यान में बिठाएं कि हम जब हरम में जा रहे हैं तो वहाँ की एक नेकी 1 लाख के बराबर है, तो हम पैसा भी खर्च करें तो 1 लाख के बराबर खर्च करने की कोशिश से करें। इसलिए लोग देखते हुए 70,000 में कर लिया जाए, 25,000 बच गए, 20,000 बच गए, फिर परेशानियों का सामना कर आते, फिर शिकायतें करते हैं। इसलिए रिजर्व टूर एंड ट्रैवल ही अपना टारगेट कर रहा है कि जाते वक्त हाजियों को जितना हो सके सहूलत के साथ ले जाया जाए और सहूलत के साथ लाया जाए। और ज़्यादा तादाद हमारे पास नहीं है, अभी हमने 41 हाजियों को मुंतखब किया। ये मौलाना एक मुअल्लिम है, मैंने इनके जब पैसे जमा किए तो एक मिसाल दी जाती कि पैसों को ऊदी लग जाती मिसाल दी जाती, तो मैंने इनके जब पैसे लिए तो इसमें से धूल निकल रही थी। एक मुअल्लिम अपनी तनख्वाह को जमा करते करते बैतुल्लाह को जा रहा, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक आलिम दीन का खुद की कमाई से जाना, इसमें हमने उनको नहीं चुन के, उनके खुद जाती पैसों से हो जा रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्त, हम रिजर्व टूर एंड ट्रैवल पूरे शहरियान से और पूरे जिले के लोगों से ख्वाहिशमंद रखते हैं कि हाजी सहूलत के साथ जाएं और सहूलत के साथ आएं। वहाँ खाना पीना सारे इंतजाम तो देखने के बाद हाजी खुद आकर बयान करे, ये हमारा मकसद है। हम अपनी तारीफ या हमारे अपने वीडियोस या हमारा अपना बयान करना नहीं है, हाजी के साथ जो सलूक किया जाएगा वही हमारी सबसे बड़ी रहबरी और रहनुमाई है। होटल कितनी दूर है अभी बताइए? होटल 400 मीटर दूर है, सुइज अल खलील, शार खलील इब्राहिम पर, बाबे मलिक फाज से। सिर्फ आप अजान सुनो और हरम में जाकर वुजू से नमाज पढ़ो। आपके साथ के बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं भी है, लेडीज भी है, तो कोई अगर बीमार पड़े, अल्लाह ना करे, कमजोर है, कोई इंतजाम है वहाँ पर? इंतजाम पूरे टोटल हमने यहाँ से भी दवाइयाँ साथ में ली है रिजर्व टूर ट्रैवल वालों ने, और वहाँ पर भी हमारे रवाबित हैं, मुस्तकिल एक टीम हमारे साथ वहाँ पर है इंशाल्लाह। इस वक्त तो मैं नहीं जा रहा हूँ, हमारे दोस्त जो हाजी मोहसिन है, जो ऑनर है मेन अव्वल नंबर के, वो जा रहे हैं और उन्होंने पूरे इंतजाम वहाँ पर किए माशाल्लाह। इससे हटके का आखिरी सवाल, पूरी दुनिया से लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं यकीनी तौर से, तो जब आप बड़े जिम्मेदार शख्स हैं तो अपील करेंगे कि बाहर मुल्क में इजराइल फलस्तीन जंग चल रही है कि हम उनको दुआ में याद रखें, कोई आपका दर्दमंद अपील पूरी दुनिया के मुसलमानों से? बल्कि दुआ में याद रखे नहीं, याद रखना हर उम्मती का फर्ज है। अगर कोई आदमी उनके लिए दुआ ना कर रहा हो, समझ लो उसके लिए उम्मत का कोई दर्द और गम नहीं है उसके सीने। इसलिए फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ नहीं, बल्कि जितनी इबादत उनके नाते से की जा सकती है, उनके ताल्लुक से की जा सकती है, वहाँ जाकर करना चाहिए। आपके जबानी जो तो आपका ऑफिस का एड्रेस मोबाइल नंबर बोल दीजिए आप। हमारा ऑफिस रिजर्व टूर एंड ट्रैवल्स, यहाँ पर आजाद चौक बजरंग चौक की तरफ जो रास्ता जाता है, यहाँ ऑफिस है, और हाजी मोहसिन साहब इसके मेन है, उसके साथ में माजिद पटेल है, हम उनके साथ में सिल्लोड और बुढ़ाना सर्कल के लिए हमको इन्होंने सिलेक्शन किया है। हमारा मुस्तकिल प्लान यही है, मंसूबा यही कि हाजी को सहूलत हो। हमने जब मैं उम्रे के लिए गया तो मैंने हाजी मोहसिन साहब से कहा कि हम सबसे पहले ये जाने कि पैसे कमाना मकसूद नहीं है, नाम का इंतखाब यही है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, यह रिजर्व टूर और ट्रैवल का मकसद है। इसके बाद क्या कहेंगे जाते हुए? दुआ करेंगे सबके लिए दुआ करेंगे। आपका नाम, आप कहाँ से? बड़गांव गिन्नरा। आप पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जा रहे हैं। कैसा लगता है, मतलब जिंदगी पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जा तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे कभी गए नहीं, इसलिए अल्लाह ने बुलाया बोल के इसलिए जा रहे हैं। अच्छा, अल रिजा से पहली बार जा रहे हैं आप? अल रिजा से पहली बार जा अच्छा, औरंगाबाद में और भी टूर है, यही टूर से आपको क्यों चुना? रहे हैं। ये अब हमारे नजदीक है और हमको अच्छा लगा, इसलिए हमने कुछ चुना। कितने दिन का सफर है आपका? ये 20 दिन का, 22 दिन का है, ऐसा 2 दिन आने जाने का है, टोटल 22 दिन का है। आपके परिवार कितने लोग जा रहे हैं? हमारे 7-5 लोग हैं। कहाँ से? देवगांव से। आप पहली बार जा रहे हैं? पहली बार। कैसा लगता है एक ताल्लुक से जाना? अच्छा लगता है। अल रिजा के बारे में बोलिए आप। अल रिजा तो अभी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। बस है। हाँ। अच्छा, सफर कितने का है आपने? अब 20 दिन का। अच्छा, इनसे जाने से पहले आपने तमाम बातें तय करी, होटल कितनी दूर है, नजदीक है? हाँ जान रहे हैं आप? हाँ, 500 मीटर पे रहेंगी और सब ज़ारत कराएंगे इंशाल्लाह। कितने दिन का सफर है आपका? 20 दिन का। हाँ। अच्छा, आपको पता है कि दुनिया में हालात क्या चल रहे, कोई अगर तासुरात उसके लिए दुआ हाँ, फलस्तीन के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे? हाँ इंशाल्लाह। आज अल रिजा का हज और उम्रा का जो है पहला जत्था जा रहा है 40 लोगों का। हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनके हज और उम्रे के जो इन्होंने चालू किया है, इनको अल्लाह ताला कामयाब करे, और जो हाजी जो जा रहे हैं इनके लिए वो वहाँ पे जो उन्होंने वादे किए हैं तो पूरा करे, और जो हाजी नए जा रहे हैं उनके साथ उनके साथी रहने वाला है, पूरे ज़ियारत करवाने वाले हैं मदीना मुनव्वरा के अंदर, मक्का शरीफ के अंदर पूरे उम्रे करवाने वाले हैं, मस्जिद जालाना से भी उम्रा करवाने वाले हैं। और हम यही
सभी हाजी लोगों से उम्रे लोगों से दुआ चाहेंगे कि पूरे औरंगाबाद के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे दुनिया के लिए और ख़ास तौर से फिलिस्तीन के लिए सब काबे को पकड़ पकड़ कर दुआ करें कि भाई जो फिलिस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको अल्लाह ताला आसानी फरमाए और कामयाबी आता फरमाए। हम बोल के जाए, हमारा नाम इस्माइल पटेल बोल के। इस्माइल आप पहली बार उम्र गुजारे, हाँ पहली। कैसा लग रहा है जाते हुए? अच्छा लग रहा। माशाल्लाह हम तो भी उम्रे के लिए रवाना हो रहे और जो तो अल रिजर्व टूर से हम रवाना हो रहे और मोहसिन पटेल साहब जी इनकी जो तो टूर अभी मतलब चालू है तो माशाल्लाह जा रहे हैं हम। अब इंशाल्लाह जो है आगे क्या तो देखिए नहीं, अब देखिए इंशाल्लाह अब क्या है इनका। तो जाने से पहले आपने पूछताछ की इनसे? जी इनसे दूर है, इन्होंने कहा कि 500 किलोमीटर मतलब 500 मीटर की दूरी पे है होटल जी उसके अंदर फिर वहाँ से जाना है। और जो तो मदीने में जो तो 250 किलोमीटर 250 मतलब मीटर पे है। कितने का सफर है आपका? 22 दिन का हमारा सफर है रवाना होता है, मतलब 20 दिन वहाँ रहेंगे और एक दिन सफर जो तो आने जाने का। अच्छा, तो दुआ ही आप देख रहे हैं मुल्क में, आप बाहर हालात क्या चल रहे हैं? जी कोई दुआ का इजहार करेंगे? दुआ में कैसे याद? इंशाल्लाह दुआ में हम सबको याद रखेंगे, मतलब सबका नाम तो नहीं ले सकते हम, लेकिन सबकी तरफ से उम्मत के लिए हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और खास तौर से फलस्तीन के वास्ते हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह, दिल में करेंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको मुबारकबाद, क्या तासुरात क्या है आपके? हमको उम्र जाना है, आप कहाँ से हैं? टाकली। कितने लोग जा रहे हैं आप? 3। एक टाकली मतलब बिहार से इतने लोगों का जाना कैसा लगता है आपको? अच्छा लग रहा है जाने क्या है तो अच्छा, इनके जो पूरी जांच पड़ताल करके जा रहे हैं आप? ये वीडियो हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि वीडियो ये टूर वाले वादे करते हैं, होटल नजदीक रहेंगी, ये देंगे वो देंगे, ये हम रिकॉर्ड रखते हैं ताकि किसी को गलती हो तो बताने में आसानी हो। आपने पूरी इत्मीनान करें। देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल रिजा टूर एंड ट्रेवल्स का हमारा आज पहला काफिला रवाना हो रहा है माशाल्लाह। और हमारा ये जो है तो 20 दिन का सफर है, 4 दिसंबर से 24 दिसंबर तक। 24 दिसंबर को हमारी रवानगी रहेंगे इंशाल्लाह। और अभी हम जो है तो यहाँ से 41 लोग जा रहे हैं। ये आपको पहला काफिला है? अल्हम्दुलिल्लाह पहला काफिला है। और वहाँ पर क्या क्या सहूलतें आपने लेने का ऐलान किया? आपने जबानी बोल दीजिए एक बार। देखो अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तो हम मुंबई बस से लेके जा रहे हैं, स्लीपर एसी बस से। और हमारा फ्लाइट सऊदी एयरलाइंस मुंबई जिद्दा डायरेक्ट फ्लाइट है। और दूसरी बात हम जो है तो मक्का की पूरी ज़ियारतें करेंगे, उसमें जोराना से भी उम्रा है, अल्हम्दुलिल्लाह ताइफ से भी उम्रा कराएंगे, मक्का की पूरी ज़ियारतें करेंगे इंशाल्लाह। नए देखने वालों का आपके जबान में आपका ऑफिस का एड्रेस, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर बोल दीजिए। हमारा ऑफिस का एड्रेस है N8 सिडको मौलाना आज़ाद चौक। और हमारा ऑफिस अल रिजा हज उम्रा सर्विस टूर एंड ट्रेवल्स। आपका मोबाइल नंबर बोल दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9422707706। चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो नहीं आदि तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। क्या करेगा इधर बांध रखते सफर, चल बैदे रज़ा मैं मदीने चला। लुत्फ मुर्शिद का है चलू बैदे रज़ा मैं मदीने चला। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों की। इधर देखो ऐसा आमना के प्यारे का सर
سرکار دو عالم کا آمنہ کے پیارے ایسے لینا آمنہ کے پیارے دیکھو ایسا بیگ دکھ رہا لے کے بیٹھا پاسپورٹ لے کے سرکار دو ہم مناتے ہیں 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 ہم مناتے جشن منا رہے ہیں جشن منا رہے ہیں جشن مناؤ جشن ہم مناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں ہم مناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں جل جل کے مرتے ہیں چلنے والے آ جاتے ہیں ذکر خیر الورا جان ہم مناتے ہیں والے جلتے ہیں چل ٹھیک ہے کیا صرف ساری دنیا وہ طیبہ کی گلیاں ہیں صرف ساری دنیا میں وہ طیبہ کی گلیاں ہیں جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سے کے چل جیسے صرف ساری دنیا میں بازار مدینہ ہے جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سے کے چلتے وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے چھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں جس جگہ پہ ہم جیسے چھوٹے سکے چلتے نیوز کا وہ کرو ان کے در سے ملتا ہے ہم کو جو بھی ملتا ان کے در سے ملتا ہے مصطفیٰ کے ٹوکروں پر خوش نصیب پلتے ہیں مصطفیٰ کے ٹوکروں پر خوش نصیب پلتے ہیں موڑ فکر دنیا کے چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی رحمتوں کے سائے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں رحمتوں کے چلتے ہیں
مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے سچ ہے علیم آقا کے جو ٹکڑوں پہ پلتے ہیں علیم آقا کے ہاں جو ٹکڑوں پہ پلتے ہیں جو ٹکڑوں پہ پلتے ہیں جو ٹکڑوں پہ پلتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام اور لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے گئے سچ ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں لیتے علیم آقا خبریں دیکھنی ہو تو اورنگ آباد اپڈیٹس اب ہوگی ہر خبر اپڈیٹ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اورنگ آباد کا نمبر 1 یوٹیوب نیوز چینل اورنگ آباد اپڈیٹس اورنگ آباد کا اپنا یوٹیوب نیوز چینل